अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study summer pack of class metric. I hope that you have pencil, book, notebook, etc. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open your notebook. But before starting our class, we will recite this dua. So I am going to read this dua and you are going to repeat with me. As-salatu was-salam alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. As-salatu was-salam alayka ya Nabi Allah Wala alika wa ashabika ya Noor Allah. So, as you know that before starting our any class, we discuss our SLOs. So, SLOs are in front of you, but before I want to ask you that do you know SLOs? What are they? If you do not know, okay, listen that S stands for students, L stands for learning, and O stands for outcome. Means it becomes student learning outcome. So SLO of the day is students will be able to know article, imperative and degree of adjective. Means those students who are going to attend this class and listen this lecture, so what would they get? They will have know-how about articles, imperative, degrees of adjective. Okay, and we will clear inshallah lots of doubts about that, which confusions we have about, because we know that these all are very important when we speak English, when we write English, we need these things. That's why we are going to work and we are going to improve this skill. So let's start our class. So the topic which we are going to cover first, it is article. Okay, as you know that this is the very important topic in our language, and lots of things, okay, this topic has, and we need to learn. We know that this topic is very important from examination point of view. Okay, so let's see and let's talk about it. Article, there are two kinds of article. Number one, definite article, and number two, indefinite article. So now you can see on your screen there are two kinds of articles, definite article, indefinite article, and you can see in that box, definite article, there is only one article is written, that is the. And second, in the second box we have two articles, a and an. It means that we have three words, the, a and an.
Okay, R and N is R and N are definite article. The is definite article. Okay, I hope ये बात आपको अब तक क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास दो किस्म के आर्टिकल हैं, डेफिनाइट एंड डेफिनाइट, और कौन कौन से हैं? द डेफिनाइट आर्टिकल है, आ और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट देम. इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और हम इनको यूज़ कब और कैसे करते हैं, ये भी हम देखने जा रहे हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी डेफिनाइट आर्टिकल. सो डेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं? दे इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दे आर यूज्ड विद सम काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, हम नाउन के, जैसे हमें पता है कि हम नाउन के साथ ही आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हम किस किस्म के नाउन के साथ हम डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करते हैं. तो इट इज़ यूज्ड विद स्पेसिफिक नाउन. अब ये स्पेसिफिक नाउन क्या होता है? तो भाई स्पेसिफिक नाउन जो है वो ऐसे समझ लें कि जैसे जो नाउन कुछ अपने अंदर कुछ खासियत रखता हो, मतलब वो दीगर जो नाउन है उनसे थोड़ा सा अलग हो, कोई अपने अंदर ख़ास बात रखता हो, और यही चीज़ उसको स्पेसिफिक बनाती है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, जैसे कि हम पेन को एक कॉमन नाउन बोलते हैं. ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ एक ऐसे पेन की जो कि मेरा पेन है, तो मैं किसी से मांगता हूँ तो वो कहता है अपना पेन जैसे मुझे देता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस पेन, आई एम आस्किंग अबाउट द पेन विच आई गेव यू येस्टरडे. ठीक है, तो ये पेन जो था ये क्या हुआ? ये एक अलग पेन हुआ बाकी पेन से. क्यों? क्योंकि वो ख़ास पेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसके साथ मैंने दा यूज़ करा. ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे. और इट इज़ यूज विद स्पेसिफिक नाउन एंड यूनिक थिंग्स. यूनिक थिंग्स क्या हैं? यूनिक थिंग्स वो हैं जो कि बहुत ही अनोखी हों और उनके जैसी कोई चीज़ हो नहीं. ठीक है, तो उसको हम यूनिक थिंग्स बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल सन हुआ, मून हुआ, या द होली कुरान है, मतलब इस जैसी किताब हमारे पास और कोई नहीं है. ठीक है, एंड द लास्ट इज़ सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री जो है आज हम लोग एक और टॉपिक कवर भी करेंगे, दैट इज़ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. In that topic we will learn degrees of adjective in very very detail. Okay, तो अभी खाली मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या है. देखिए, किसी भी सिर्फ, ठीक है, और वो सिर्फ बिल्कुल ही या तो ख़ास हो, सुपीरियर हो, या बहुत ही इन्फीरियर हो, उसको बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले हम दा लगाते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैद हमारी क्लास का बेहतरीन स्टूडेंट है, सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, तो मैं कहूँगा जैद इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास. तो ये बेस्ट से पहले हमने दा का इस्तेमाल किया. ठीक है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने दा का इस्तेमाल किया. ठीक है, तो देयर आर ओनली 3 थिंग्स. वो क्या हैं? Specific noun, unique things, and superlative degrees. Before these kind of things, we'll use our definite article, that is the. So let's see some example. So examples are in front of you. The sun. हमें पता है कि ये एक यूनिक थिंग है, इसीलिए हमने इससे पहले
दा का इस्तेमाल किया, एंड द मून ये भी वही बात है, ठीक है। अच्छा, द पेन, ये द पेन मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि बाकी कोई कॉमन नाउन के साथ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं द, लेकिन ये वही वाली एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दी थी, द पेन विच आई गेव यू येस्टरडे, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पेन विच आई गेव यू येस्टरडे। सही, तो उस खास पेन की बात हो रही है, इसीलिए इसके साथ दा का इस्तेमाल किया गया है। द रिवर इंडस जो कि एक ही है, इसीलिए इसके साथ दा लगाया गया है। द ग्रेट पर्सन, ठीक है, तो एंड द होली कुरान, सही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द, सही। तो जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि भाई कोई 3 इस तरह की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए नाउन में, स्पेसिफिक होना चाहिए, यूनिक थिंग होनी चाहिए, या फिर सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। सही, लेट्स मूव अहेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनडेफिनाइट आर्टिकल। अब ये इनडेफिनाइट आर्टिकल ये डेफिनाइट आर्टिकल से थोड़े से अलग है, दे आर लिटिल डिफरेंट। ओके, तो वो क्या फ़र्क है, मतलब ये तो रहेगा कि नाउन के साथ ही आएगा, मतलब नाउन से पहले ही यूज़ करेंगे, लेकिन किस तरह के नाउन के साथ ये अभी हम देखने वाले हैं। तो वो जो नाउन है वो हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस नाउन के अंदर जहां हम यूज़ करेंगे आ और एन। इट इज़ यूज विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन, मतलब क्या क्वालिटी होनी चाहिए नाउन के अंदर, एक तो वो काउंटेबल हो, मतलब इससे हमें ये बात पता चल गई कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इनडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, सिंगुलर हो, एक हो, इसका मतलब है कि प्लुरल होगी तो भी हम आ और एन नहीं लगाएंगे। सही, तो काउंटेबल हो, सिंगुलर हो और नाउन हो तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, आ और एन, यानी कि हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल। सही, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आर, चले देखते हैं। देखें हमारे पास यहाँ दोनों तरफ एग्जाम्पल्स दी हुई है, एक तरफ आ की, दूसरी तरफ एन की। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आ, ठीक है। वैसे ये ए है लेकिन हम इसको आ पढ़ते हैं आर्टिकल में, ठीक है। तो ये गलती तो मेरे ख्याल से कोई करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वजाहत कर देनी चाहिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो जाए कि हम इसको आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। सही, तो ये कहाँ लगाया करेंगे भाई, तो देख लें, विथ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए भाई, जहाँ पर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होगा, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को हटाकर जो के साउंड बनते हैं हम उनको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, तो उनके साथ हम आ लगाएंगे, लेकिन किस कंडीशन में, जब वो क्या हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है, आ बैग, आ हाउस, आ पेन, आ यूनिवर्सिटी, आ स्कूल। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आपने नोट की, यूनिवर्सिटी जो है ख़ुद एक वॉवेल से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने इसके साथ आ यूज़ किया, जबकि हम कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि कॉन्सोनेंट के साथ नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। तो ये यूनिवर्सिटी कोई वॉवेल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये कॉन्सोनेंट साउंड से इस्तेमाल होता है, बोला जाता है। सही। अच्छा, दूसरी एक और डाउट हम क्लियर करने जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने लास्ट वाली एग्जाम्पल लिखी हुई है, आ स्कूल। तो ये एक कॉन्सेप्ट ये भी स्टूडेंट के माइंड में बैठा होता है कि भाई ये जो अलिफ से वर्ड स्टार्ट होंगे तो हम उनके साथ एन लगाया करेंगे, क्योंकि जो वॉवेल साउंड है वो तो अलिफ का साउंड होता है। तो भाई देखें, ऐसा नहीं है, हम जो साउंड यूज़ करेंगे वो है, चले मैं आपको जब एन के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि वॉवेल साउंड क्या होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये स्कूल जो है ये वॉवेल साउंड नहीं है। सही है, चलें लेट्स टॉक अबाउट एन विद वॉवेल साउंड। अच्छा देखिए भाई, एन जो है ये वॉवेल साउंड के साथ हम यूज़ करेंगे। सही, और वॉवेल साउंड होता क्या है अब सुन लें आप, ठीक है। वो क्या होते हैं,
ये आ साउंड, ठीक है, यानी कि आप अगर इसको ऐसे समझते हैं कि चले अलिफ की किसी स्टूडेंट अमूमन बात करते हैं तो आप इसको ऐसे समझ लें कि अलिफ के ऊपर ज़बर होगा ना तो आप एन लगा लें, या अलिफ के ऊपर पेश हो तो भी लगा सकते हैं, अलिफ के ऊपर मद हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलिफ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है और आप एन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ज़बर पेश या मद वाले साउंड पे तो आप लगा दें, ठीक है। वैसे याद रखें कि वॉवेल साउंड आ साउंड जो हो गए उनके साथ हम यूज़ किया करेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं हमारी वही वाली एग्जाम्पल पे स्कूल के ऊपर। तो भाई स्कूल में क्या है, अलिफ के नीचे क्या है, ज़ेर है, ज़बर है, ज़ेर है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आ इससे पहले लगाया है। तो भाई नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स ऑफ एन ऑरेंज, ओके। ऑरेंज वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। एन एप्पल भी वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सीखने के लिए आ गई है, वो है एन MBA। तो कोई बंदा जो MBA करा हुआ होता है हम उसको MBA बोलते हैं, वैसे डिग्री का नाम होता है लेकिन उस बंदे को भी हम लोग MBA बोलते हैं। तो एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर साउंड जो है वो ये वॉवेल का देता है, इसीलिए हमने इससे पहले एन लगाया है, सही। तो इस चीज़ पे अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो कॉन्सोनेंट है, एन कैसे आ गया। तो याद रखिएगा एम आ साउंड है, ठीक है। FA, ठीक है, FA, तो F भी आ साउंड है, अगर FA लिखा जाएगा कहीं तो वहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, सही है। लास्ट एग्जाम्पल है एन एक्सीडेंट, ओके। सो द नेक्स्ट topic we are going to cover, this is adjective, okay, adjective। तो हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है adjective, ओके। सो adjectives क्या होते हैं, तो let's see, a word that modifies or tells qualities of a noun, यानी कि ऐसा वर्ड जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है और क्वालिटीज़ बताता है नाउन की, यानी कि नाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी वजाहत करता है, उसकी क्वालिटीज़ बताता है, सही। जैसे कि हम हर बंदे की, चीज़ की क्वालिटीज़ बताते हैं कि भाई ये फला अच्छा है, बुरा है, ये कमरा साफ है, गंदा है, ठीक है। ये जैसे ये गाड़ी छोटी है या बड़ी है, सही है। तो ये क्या हुआ, ये उसकी क्वालिटी है, यानी कि अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हैं कि बड़ी है, खूबसूरत है। तो ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मीन्स कि भाई दिस कार इज़ बिग, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, कंफर्टेबल, तो ये क्वालिटीज़ हो गई उस गाड़ी की, सही है। तो अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और टेल्स क्वालिटीज ऑफ अ नाउन, ओके। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। गुड बॉय, ग्रेट पर्सन, डर्टी रूम, बिग हाउस, एक्सपेंसिव पेन। मतलब देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बॉय, पर्सन, रूम, हाउस, पेन, ये सब के सब क्या हैं, नाउन हैं, सही है। और इससे पहले अगर हम ये एडजेक्टिव ना लगाएं तो हमें इनकी क्वालिटी पता नहीं चलेगी। अगर मैं बोलता हूं ही इज बॉय, हमें नहीं पता कैसा लड़का है, लेकिन अगर मैं एक एडजेक्टिव उसके साथ लगाऊंगा तो हमें ये वाज़ेह हो जाएगा किस तरह का लड़का है। ही इज गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट बॉय, सही। पर्सन है, कैसा पर्सन है, ग्रेट पर्सन है, माइजर है, ठीक है, जेनरस है, ठीक है। रूम है, डर्टी है, क्लीन है, हाउस बिग है, स्मॉल है, पेन एक्सपेंसिव है, चीप है। तो उसकी क्वालिटी बगैर एडजेक्टिव लगाए हमें पता नहीं चलती।
तो इसीलिए हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन की क्वालिटी हमें पता चल सके। सही, तो बहुत आसान है ये। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स मोर, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, मतलब एक चार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको जहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये क्या है? तो भाई यही हमारा टॉपिक है आज का, जो हम लोगों ने बात की थी कि क्या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो इनको पहले मैं बता देता हूँ ये क्या होते हैं। पॉजिटिव मतलब कोई भी क्वालिटी, जो एडजेक्टिव्स हमने अभी इससे पहले देखे वो सब के सब पॉजिटिव थे, ठीक है। और कंपैरेटिव क्या है डिग्री? ये मतलब जब हम कंपेयर करते हैं, सही। जैसे मैं बोलता हूं Zaid इज अ गुड बॉय, लेकिन जब हम दो लोगों को, दो चीज़ों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव दरकार होता है। तो मैं बोलता हूं लेकिन क्या है, बकर इज बेटर देन जैद, यानी कि जैद जो है वो उससे बेहतर, जैद से बेहतर कौन है? बकर है। जैद अच्छा है लेकिन बकर उससे बेहतर है, ठीक है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? यानी कि बहुत ही आला, यानी कि उससे अच्छा या उससे बुरा कोई चीज़ या कोई शख्स ना हो, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि जैद इज़ अ गुड बॉय, मैंने कंपैरेटिव की एग्जांपल देखी, बट बकर इज बेटर देन जैद। लेकिन अब आगे क्या है? अहमद इज द बेस्ट, लेकिन जो अहमद है वो सबसे बेहतरीन है, सही। सो भाई नाउ यू हैव एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखते हैं कि देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बिग, बिगर देन, द बिगेस्ट। अब देखें वही चीज़ आपको मैं याद दिला दूँ, एक तो आर्टिकल्स में मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द, तो आप देख लें यहाँ सब सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ क्या लिखा हुआ है? द लिखा हुआ है, सही। तो इनसे पहले हमने द का इस्तेमाल करना होता है, सही। तो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, देखते हैं इनको। बिग, बिगर देन द बिगेस्ट, यानी कि बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ठीक है। ग्रेट, ग्रेटर देन एंड द ग्रेटेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। गुड, बेटर देन, मतलब बेटर है वैसे, लेकिन देन जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में देन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखिए कंपैरेटिव के साथ हम देन लगाते हैं, सही है, ताकि हमें पता चले कि उसके निस्बत, ठीक है, इसके मायने ऐसे आएंगे। एंड द बेस्ट। अच्छा भाई, अब ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ दिस कार इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन क्या दूसरी गाड़ी से अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ, मैं बोलता हूँ बट दैट कार इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दिस, लेकिन वो गाड़ी जो है वो इस गाड़ी से ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर जो एडजेक्टिव्स लिखे हैं वहाँ पर मैंने उनके साथ देन लगा दिया, मतलब कंपैरेटिव बनाकर, यानी कि ई आर लगा है बाकियों में, है ना, बाकी सब में ई आर लगा है, लेकिन यहाँ पर हमें मोर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ अब ऐसे बस इसको याद रख लें कि ये कहलाते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव, जिसमें मतलब हम क्या करते हैं, मोर लगाते हैं, द एंड द मोस्ट लगाते हैं, ठीक है, और बाकी पॉजिटिव डिग्री को ही हम यूज़ करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल में हमने कोई चेंज नहीं करा, वही वाला ही लिखा है, लेकिन उससे पहले मोर और देन लगाया हुआ है, सही। और देखें मोस्ट ब्यूटीफुल में भी यही हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? बिग, बिगर, यानी कि ई आर लगा है या ई एस टी लगा है, ठीक है। तो जिनमें हम ई आर ई एस टी लगाते हैं वो रेगुलर एडजेक्टिव कहलाते हैं, और जिनमें हम कोई चेंज नहीं करते। अच्छा, ये करते कब हैं? अभी हमें पता कैसे चलेगा? अब आपको कोई एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाना और सुपरलेटिव बनाना, तो आप ये कैसे फैसला करेंगे कि भाई मैं इसमें मोर लगाऊं या ई आर लगाऊं? तो इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है।
मतलब आप ऐसे याद रख लें, जो वर्ड एक से ज्यादा सिलेबल में टूटता हो, जैसे बिग, ये मतलब एक ही सिलेबल है, आप इसको मतलब बगैर तोड़े बोल लेते हैं बिग। लेकिन ब्यूटीफुल को आप बगैर तोड़े नहीं बोल सकते, आप क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। तो कितने सिलेबल आ गए, ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिलेबल नहीं है, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इनके साथ मोर यूज करा है। जो वर्ड में आपको एक से ज्यादा सिलेबल नजर आए, आप उनके साथ मोर और द मोस्ट का यूज करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हुए। सही है। इसी तरीके से हमारी 2 और एग्जाम्पल हैं, इंटरेस्टिंग और डेंजरस। इनके साथ भी हमने यही करा है, हमने मोर इंटरेस्टिंग और मोर डेंजरस, इसी तरीके से द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट डेंजरस का इस्तेमाल किया है। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। तो भाई हमने अब तक 2 टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं, जो कि हमारे समर पैक में हमने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी वैसे भी आम जिंदगी में भी इंग्लिश बोलने में, लिखने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बोलूँ, ये बोलने में, इंग्लिश बोलने में हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है। सही है। तो इस टॉपिक का नाम है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में से है, और ये हमें बहुत हेल्प करेगा। और ये वो सेंटेंसेस जो हम रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। ठीक है, अभी जब हम इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के ये होते हैं। तो भाई इट शोज एडवाइस, कमांड, इंस्ट्रक्शन एंड रिक्वेस्ट। मतलब मशवरा देने के लिए, हुक्म वगैरह देने के लिए, हिदायत देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए हम इम्पेरेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे पास बहुत तरह की काइंड्स हैं सेंटेंसेस की, लेकिन इम्पेरेटिव का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यानी कि जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई इधर आइए, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि स्टॉप राइटिंग, कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि गो लेफ्ट राइट। सही है। यानी कि जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं, किसी को ऑपरेट करना सिखा रहे होते हैं तो बताते हैं प्रेस दिस बटन, ओके, नाउ डू दिस, डू दैट। तो इम्पेरेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं एडवाइस के लिए, कमांड के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। अब इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, सो वो अब हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ दे आर मेड। सो फर्स्ट वी विल सी फॉर्मूला। तो ये सेंटेंस में आपको एक फॉर्मूला चाहिए होगा ताकि आप गलती ना करें, बिल्कुल सही सेंटेंस बनाएं। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इससे पहले जो हम लोग टेंसेस में फॉर्मूलाज देख रहे थे तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से मतलब करके आ रहा था वो। बट हेयर वी हैव लिटिल डिफरेंट। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ही नजर नहीं आ रहा। क्यों? यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही शख्स है जिसको ये जुमला बोला जा रहा है। मतलब अगर उर्दू में देखें तो हम लोग बोलते हैं किसी को कि बैठिए। अब इसमें कोई मतलब सब्जेक्ट आया नहीं, आया ना, तो जाहिर सी बात है इससे मुराद वही शख्स है जो खड़ा हुआ है और हम उसको कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी हमें यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि जिस बंदे को कहा जा रहा है, जिस शख्स को कहा जा रहा है, वो ही इस जुमले का सब्जेक्ट है। सही। तो फॉर्मूला इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। अब इसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने आपको नजर आ रही होंगी। कम हेयर, यहां ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का तर्जुमा करो। सिट नेक्स्ट टू हिम, उसके बराबर में बैठो। गो लेफ्ट,
यानी कि लेफ्ट जाओ, ईट हेल्दी फूड यानी कि सेहतमंद खाना खाओ, कीप वॉचिंग मदनी चैनल, ये देखें बहुत मशहूर जुमला है, हमें बहुत सारी जगहों पे और मतलब बहुत सारे लोग इसको बहुत सारी जगहों पे लिखते हैं, कीप वॉचिंग मदनी चैनल। देखें इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, क्यों? इससे मुराद यही होता है कि जो ये शख्स पढ़ेगा ये उसी के लिए वही सब्जेक्ट होगा, यानी कि जहाँ पर ये लिखा होता है तो ये उस शख्स के लिए नेकी की दावत है, और जो नेकी की दावत है ये भी इसी तरीके से क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में है कि आप ऐसा कीजिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सही? अच्छा भाई, तो अच्छा आपको एक ग्रीन बॉक्स में भी सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे। सो दे आर लिटिल डिफरेंट। उनको बताने से पहले एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, द सेंटेंसेस विच आर रिटन इन रेड बॉक्स, ये एंड दूसरे जो ग्रीन वाले इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है? देखें, ये जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखें ये हम अपने बड़ों से नहीं कहते हैं। ठीक है, ये मतलब अजीब सी बात है, हम किसी को बोलें बैठो, पानी पिलाओ, ठीक है, वहाँ जाओ, तो ये सुनने में ही अजीब लगता है। मतलब बड़ों से बोलना तो ये बदतमीज़ी में शायद शुमार हो जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं कि हम इसको सीनियर टू जूनियर तो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़ा छोटे को बोलता है तो ठीक है चलता है, लेकिन छोटा बड़े को बोलेगा तो ये बदतमीज़ी हो जाएगी, और ये फिर आपको पता है कि हमारा फिर तालीम हासिल करने का फ़ायदा ही क्या अगर हम इन सब चीज़ों पे फोकस ही ना करें। तो हम इन सेंटेंस को क्या करते हैं, फॉर्मल बना लेते हैं थोड़ा सा। तो वो फॉर्मल कैसे बनाते हैं, हम प्लीज़, काइंडली, इस तरह के वर्ड्स क्या करते हैं, इससे पहले ऐड कर देते हैं, तो अब ये थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है। ठीक है, अब अगर जैसे मैं बोलता हूँ प्लीज़ हेल्प मी, तो अब मैं किसी बड़े को भी बोलता हूँ तो ये सेंटेंस क्या हुआ, रिक्वेस्ट है, इसमें आजिज़ी अब नज़र आ रही है, तो ये अब चलेगा। ठीक है, यानी कि अब ये सेंटेंस ओके हो गया है, प्लीज़ लगाने से या काइंडली लगाने से ये सेंटेंस ओके हो जाएगा। सही? तो प्लीज़ गिव मी योर बुक, काइंडली वेट फॉर अस, इस तरीके से आप फॉर्मल काइंड के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इनका इस्तेमाल डेली लाइफ में रोज़ाना करते रहते हैं। सही? तो इसीलिए हमें ये बनाना भी आने चाहिए। अब देखें, हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव्स की। दिस सेंटेंसेस हैव नेगेटिव एज वेल। ठीक है, हम जब कहते हैं कि ये काम करो, तो हम ये भी कहते हैं ये काम मत करो। सही? तो इसी के लिए हम इसके सेंटेंसेस के नेगेटिव्स बनाना भी देखने वाले हैं। सो फर्स्ट विल सी फॉर्मूला। सो डू नॉट और नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम डू नॉट लगा देंगे, यानी कि वही तरीका है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे पहले डू नॉट और नेवर। तो ये किस तरीके से नजर आएंगे ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सही? अगर मैं बोलता हूं वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम जाया करो, सही है, उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, डू नॉट, अब ये नेगेटिव हो गया, अपना टाइम मत जाया करो। नेवर गिव अप, यानी कि हार मत मानो। ठीक है, डू नॉट गो देयर, जैसे हम लोग बोले थे गो देयर, वहां जाओ, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। सही? अच्छा देखिए, नेवर और डू नॉट में एक फ़र्क है, वैसे हम स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन देख लेते हैं इसको। डू नॉट यानी कि ऐसा मत करो, नेवर कभी ऐसा मत करो, यानी कि जब हम हमेशा के लिए कोई एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं, वसीयत करते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके का, तो हम नेवर का यूज़ करते हैं कि कभी ऐसा मत करो। सही? डू नॉट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। डोंट लेट हिम वाटर प्लांट, उसको पौधों को पानी मत डालने दो। पौधों को पानी डालना अच्छा काम है, लेकिन बार बार डालें तो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, इसीलिए मना किया जा रहा है कि
छोटा भाई जो हो उसके लिए शायद कहा जा रहा है ये कि वो पौधों में पानी उसे मत डालने दो, पौधे खराब हो जाएंगे। सही, तो ये तो एक ऐसी ही बात है, वैसे सेंटेंस ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो आज जो हम लोगों ने कुछ सीखा है वो बड़ी आसान सी और छोटी छोटी चीज़ें थी। तो उम्मीद है कि आपको बासानी समझ में भी आई होंगी और नाउ यू विल बी एबल टू यूज। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी समरी। तो समरी में हमारे पास तीनों चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं विच वी स्टडीड, आर्टिकल, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इम्पेरेटिव। अगर अब आपसे कोई पूछता है आर्टिकल, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, इम्पेरेटिव, तो आप क्या बताएंगे? सही, तो आपने जो लेक्चर आज का सुना है उससे जो आपने गेट करा है अब आप उसको बता सकते हैं। हम देखते हैं दोबारा से, मैं इसको आपके लिए समराइज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल में हमारे पास था दा और दी भी था भाई। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास इनडेफिनाइट आर्टिकल में था आ और एन। तो हमें ये भी पता है डेफिनाइट आर्टिकल हम कब यूज करते हैं? जब स्पेसिफिक नाउन हो, यूनिक थिंग्स हो और सुपरलेटिव डिग्री हो। सही, और इनडेफिनाइट आर्टिकल हम कहां पे यूज करते हैं? जहां पर काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो। ओके, सो दोनों में ये फर्क हमेशा रहेगा, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। ओके, एंड नंबर 2 वाज, तो भाई नंबर 2 पे हमारे पास क्या था? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वो क्या थे? देवर 3 थे भाई। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या था? मतलब किसी भी चीज या शख्स की क्वालिटी बताने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री हमारी। बट व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और टू पर्सन, दैट टाइम वी नीड कंपैरेटिव। ओके, तो हमने एग्जांपल्स देखी थी कि दिस कार इज बेटर देन दैट। सही, याद होगा आपको। अच्छा भाई, एंड सुपरलेटिव क्या कि उससे बहुत अच्छी कोई चीज ना हो और ना ही उससे कोई खराब चीज हो, मतलब वो सबसे या तो बेहतरीन हो या सबसे बदतरीन हो, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। एंड द लास्ट इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कब यूज करते हैं? व्हेन वी नीड टू सजेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्ट एंड रिक्वेस्ट। सही, तो अभी हमने देखा था कि थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी एग्जांपल्स देखे कि सिट हेयर, गो देयर। सही, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी इजीली एंड नाउ यू विल बी एबल टू यूज देम। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू असाइन यू द वर्क। ठीक है भाई, तो आपको मैं एक छोटा सा काम देने वाला हूं ताकि जिससे आपको खुद अंदाजा होगा कि आज की क्लास लेने के बाद आपको क्या समझ में आया, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है। तो हम अपने आप का जायजा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो ये रहा आपके सामने आपकी प्रैक्टिस। तो भाई प्रैक्टिस क्या है? फर्स्ट वी हैव यूज आर्टिकल, मतलब हमारे पास जो पहला सवाल है वो है यूज आर्टिकल। सो देयर आर 4 सेंटेंसेस वेयर यू नीड टू पुट आर्टिकल। सही, तो इन चारों के अंदर आपने करेक्ट आर्टिकल, सही है, जो आपने सीखा है कि किसके साथ कौन सा वाला आना चाहिए, आप यूज करेंगे। सही, आई होप यू वुड नॉट हैव प्रॉब्लम विद दैट। बहुत अच्छे से अभी हमने समझा है इसको। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है? यूज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, you are going to use, so you will have to put correct degree. Okay, so example, pencil is dash than pen, in bracket
गुड। आपको नजर आ रहा होगा ब्रैकेट के अंदर मैंने गुड लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपने गुड के ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स में से ही कोई एक लगाना है। यानी कि यहाँ पर या तो गुड आएगा, या तो बेटर आएगा, या फिर बेस्ट आएगा। सही। सो यू आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स, ओके। एंड द लास्ट एक्टिविटी, तो हमारी आज की जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। जब आप ये सारा काम ख़त्म कर लें, इसके बाद ये आपने एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो पहले तो मैं एक्टिविटी बता देता हूँ आपको क्या है। एक्टिविटी ये है कि टेल एड्रेस ऑफ मस्जिद फ्रॉम योर हाउस विद द हेल्प ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब आपने अपने घर के पास जो आपकी कोई भी मस्जिद हो, आपने उसका एड्रेस बताना है किसी को। जो भी शख्स आता है आपको आपके घर के बाहर मिलता है और पूछता है कि भाई यहाँ करीब में कोई मस्जिद है, तो आपने उसको कैसे बताएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो वी नीड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस काम में आएंगे बताने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, घर में आप किसी भी बड़े के पास, वालिद के पास, भाई के पास आप जाएं। सबसे पहले तो आप उसकी मदद से पहले उसको सुनाएं कि भाई मैंने टॉपिक बनाया है, आप मेरा सुने, ठीक है। अगर मैंने किसी को एड्रेस बताना हो तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, आप सुने में, ठीक है। तो कोई गलती होगी तो वो आपकी रहनुमाई भी फरमा देंगे, सही है। तो आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। आपने बताना होगा क्या, जैसे आप अपने घर के बाहर खड़े में और आप बता रहे हैं कि भाई फर्स्ट क्या करना है, भाई गो स्ट्रेट, गो लेफ्ट, गो राइट, ठीक है। यहाँ जाना है, वहाँ मुड़ना है, ये होगा, वो होगा। मतलब जिस तरीके से आपने क्या बताना है, यहाँ मुड़ो, वहाँ मुड़ो, सीधा जाओ, इस तरीके से आपने ये बनाना है। और घर में किसी बड़े को आपने ये सुनाना भी है, सही। तो ताकि आपको कोई ये फ़ायदा आपको आपकी ज़िंदगी में तो कि मतलब इम्पेरेटिव हम कहाँ यूज़ करते हैं किसी को सजेस्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आपको ये नज़र आते हैं, जैसे डॉक्टर हैं वो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई ईट वेजिटेबल्स, ठीक है। मतलब परहेज़ होता है तो वो बोलते हैं डू नॉट ईट दिस, ये चीज़ मत खाओ, फला चीज़ खाओ। तो डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं एडवाइस करने की। तो इसका यूज़ जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो हम देखेंगे और इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे, सही। सो जज़ाकल्लाहु खैरा।